Hello guys, welcome to my YouTube channel Civil Laws by Ajay Verma. In this video, we will discuss about retaining wall and doing a numerical on design of cantilever retaining wall. So retaining wall is a concrete structure which is used to retain the earth and other loose material. So this wall is constructed in many cases. First, like as construction of building basements and abutment in bridge construction and in the construction of embankments. So there are basically four types of retaining wall. First is gravity retaining wall, second is cantilever retaining wall, third is counterfort retaining wall, and fourth is buttress retaining wall. In this video we are going to discuss about only cantilever retaining wall. This is the diagram for cantilever retaining wall. This is the basic component of this type of retaining wall. The first is stem. This is inclined portion is known as stem, and this is complete is known as base slab, and base slab is divided into two parts. First is toe slab and second one heel slab. The heel slab is the part of base slab on which the backfill is supported, and the other front face of the retaining wall is known as toe slab. As the diagram shows, the heel slab and toe slab and stem in combining form a cantilever beam. So here, as when we rotate this diagram, this is like this. So here we will assume that this is a fixed end and this is a cantilever part of the structure. So this combination is named this cantilever retaining wall. So the cantilever retaining wall is used only up to a height of 6 meters. Let we discuss about the forces acting on the retaining wall. So there are four forces which will act on a cantilever retaining wall. The first one is the lateral force PH due to active earth pressure acting at a height of h/3 from the base. Let us see in the diagram. This is the diagram for cantilever retaining wall. This is the earth pressure PH is equal to K gamma h square by 2. So this will act on a h/3 height from the base. So the second one is the weight of a earth supported on heel slab. This is the earth backfill which will supported on the heel slab. The second one force is W1, and the third one is the weight of the stem. This is the component of retaining wall stem, and third forces will act by this, and third is the weight of the base slab. The third one is the complete weight of the base slab. So here, in addition to the above forces, there is a weight of the earth retained above the toe slab. So there is a fourth force W4, this, which will also act on the retaining wall, but it will be neglected due to its small quantity on its toe slab. So here, so these are the forces which will act on the retaining wall. Next we will discuss about the stability checks for this retaining wall. So these are the checks for the stability of cantilever retaining wall. The first one is overturning, the second is sliding, and third is failure of the undersoil. The first one is overturning, means when a retaining wall is subjected to overturning movement under the action of lateral forces developed due to lateral earth pressure which strive to overturn the wall above the toe end. So this overturn movement is given by, here the formulas for the overturning checks which we do in the numerical portion. So the meaning of this overturning means a lateral pressure, as we see in the diagram here. This is the lateral earth pressure which will act on retaining wall always, and which will turn this toe end in the upward direction. So the second check is sliding check. So this is the second check for sliding.
The lateral earth presses tries to slide the retaining wall away from the backfill. This is opposing by the friction force developed between the base slab and the soil. So here a earth pressure also act on this part of the soil here, which will act on the base and surface of the base slab. So here which opposes the friction between base slab and soil. To resist this friction, we will do a check for sliding, and the third one is failure of the under soil. So the soil present under the base slab also fails. So if checks upon for the failure of the under soil. In this step we will determine the maximum base pressure and the minimum base pressure. So here one thing also determine in this step. What is this? This is the resultant load. So resultant load due to all the vertical loads. So here combination of base slab, combination of stem portion and combination of backfill. So combined resultant force which will act on the within the eccentricity. So this eccentricity should be within the B/6, which is determined by IS 456 2000. This is the IS 456 specifications for the designing step for cantilever retaining wall. So first we will determine the depth of foundation H minimum, and the second is height of retaining wall capital H. As you can see in the diagram, this is the H minimum depth of foundation. The foundation is the part under the ground level. So the next is height of retaining wall capital H. This is the capital H. This is determined by adding the summation of small h plus H minimum. Here the small h is the height of material to be retained is given, which will also given in the question. Third is base slab width. This is the base slab and B is the base width. And thickness of base slab, this is the thickness of base slab. The design specification is also given here. The base slab width will be in between 0.4h to 0.6h, and the thickness of base slab also h/10 to h/15. This is the basic dimensions specification by IS 456. Let us start the numerical on design of cantilever retaining wall. Design a cantilever retaining wall to retain horizontal earthen embankment of height 4 meter above the ground level. The earthen backfill is having a density of 18 km per meter cube, and angle of internal friction is 30 degree. Means angle of repose दे रखा 30 degree. The shape bearing capacity of soil is 180 kN per meter cube. The coefficient of friction between soil and concrete is assumed to be 0.45. Use M20 concrete and Fe415 steel. So here अपने पास क्या क्या गिवन है? गिवन डाटा में क्या क्या है? M20 concrete Fe415 steel, FCK Fy है, phi है एंगल ऑफ रिपोज, इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री, म्यू है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सोil एंड कंक्रीट, एंड गामा 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब जो दे रखी है यूनिट वेट ऑफ सोयल या डेंसिटी ऑफ सोयल. अब से बेरिंग कैपेसिटी 180 किलोन्यूटन और हाइट ऑफ अर्थन एम्बैंकमेंट है 4 मीटर. तो सबसे स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, हमें निकालनी होती है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन H मिनिमम. तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, KA कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर. तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव. फाइव की वैल्यू 30 डिग्री, तो इससे हमारा निकल जाएगा K इज इक्वल टू 1/3. अब इसके बाद है मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन H मिनिमम Q नॉट अपॉन गामा 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर. तो अब निकाल देंगे, Q नॉट है 180, गामा 18, 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव पीछे निकलता है 1/3. तो इससे निकल जाएगा हमारा H मिनिमम 1.11. तो हम इसको अप्रोक्स ले लेंगे 1.2 मीटर. तो टोटल हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल कैसे निकलता, H प्लस H मिनिमम, H प्लस H मिनिमम ऐसे निकालते थे ना. इतनी हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट प्लस हाइट ऑफ H मिनिमम, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट प्लस मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन.
तो हम निकाल देंगे 4 + 1.2 करके, टोटल हाइट मेरी आ जाएगी 5.2 मीटर। तो टोटल एच आ गई हमारे पास 5.2 मीटर। अब मैं निकाल रहा हूँ इससे आगे स्पेसिफिकेशंस, डायमेंशंस। बेस विड्थ बी की स्पेसिफिकेशन थी 0.4h टू 0.6h, तो इससे मेरा बी निकल के आया 2.8 मीटर। तो मेरे वाली ये वाली डिस्टेंस आ गई 2.8 मीटर। अब इसके बाद मैं क्या निकालूंगा, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब। थिकनेस ऑफ बेस स्लैब ये वाली थिकनेस, ये आई मेरी h/10, तो एच मेरी 5.2, इसको अप्रोक्स करके इसने ले लिया 500 mm। अब इसके बाद थिकनेस ऑफ वर्टिकल बार ऑफ स्टेम, थिकनेस निकालनी है स्टेम की। अब थिकनेस स्टेम की एक ऊपर विड्थ अलग से निकलेगी ये वाली, और ये वाली नीचे वाली अलग से निकलेगी। इसका मुझे पता है मिनिमम हम लेते थे 150 mm, ठीक है, मैं इसको अप्रोक्स 150 mm मान लूँगा। अब इसके बाद नीचे वाली थिकनेस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे इसके स्टेम के बेस के ऊपर मूवमेंट निकालनी पड़ेगी, और मूवमेंट निकालने के बाद मैं वही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, mu = RU/BD²। सेम फॉर्मूला यूज़ करके मैं उससे डेप्थ निकाल लूँगा अपनी, ठीक है। अब उस मूवमेंट निकालने की क्या करूँगा, उससे पहले लोड निकालना पड़ेगा। लोड का फॉर्मूला हम स्टार्ट ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, 1/2 इंटू ये वाला मेरा ये होगा लोड और ये इंटू CG, तो मूवमेंट आ जाएगी मेरी, ठीक है। अब लोड निकालने के लिए क्या था, एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, K × γ/h, प्रेशर निकलाएगा K × γ/h, ठीक है। 1/3 K है γ18, और h हाइट लूँगा स्टेम की हाइट, ये वाली यहाँ से यहाँ तक 4.7 कैसे आई, टोटल थी मेरी 5.2, h टोटल थी 5.2। अब जब मैं इस 5.2 से नीचे वाली ये 500 mm ये वाली माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे ऊपर बच जाएगी 4.7 मीटर, ये वाली थिकनेस। अब यहाँ से मेरा लोड आ जाएगा 1/2 इंटू K × γ/h इंटू h, ये मेरा टोटल लोड। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा CG से 4.7/3, ये एक ट्रायंगल फॉर्म में है, तो ट्रायंगल का फॉर्म कहाँ पे CG कहाँ पे लाई करता है, 1/3 डिस्टेंस पे, तो 4.7/3, इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। तब इसका वर्किंग कंडीशन बनाऊंगा फैक्टर्ड लोड, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1.5 से। ये मेरी टोटल मूवमेंट आ गई है 155.74। अब जो ये मूवमेंट आई, इस मूवमेंट से मैं क्या निकालूंगा, उसी फॉर्मूला यूज़ करूँगा, mu = RU/PD²। वहाँ से d क्या आएगा, √mu/RU.b। अब b में हमेशा ऐसे फॉर्मूले में क्या यूज़ करता हूँ, 1000, एंड RU की वैल्यू 2.764, M20 एंड Fe415। तो mu की वैल्यू आ गई मेरे पास 155.74, इससे मेरी डेप्थ निकल आई 238 mm। तो मैं क्लियर कवर एज्यूम कर लूँगा 60 mm का, तो मेरी टोटल डेप्थ आ जाएगी 298 mm। पर मुझे मिनिमम पता है, मिनिमम डेप्थ होती है मेरी 350 mm, तो मैं अप्रोक्स मिनिमम ये यूज़ करूँगा यहाँ पे, d = 350 mm एट द बेस ऑफ स्टेम। अब ये मेरा प्रॉपर डायग्राम है ये वाला, इसमें यहाँ पे ये वाली है टो स्लैब, ये हील स्लैब, ये विड्थ आगे नीचे स्टेम वाली 350 जो निकाली है, ये ऊपर वाली 150 एब्जूम की है, ये टोटल 2.8 मीटर हमने निकाली थी। अब ये 500 mm 0.5 मीटर थिकनेस ऑफ दी बेस स्लैब, ये हमने डायमेंशंस निकालनी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करने से पहले मुझे फोर्स निकालने हैं हर पॉइंट पे, तभी मैं उनको चेक कर पाऊँगा। तो फोर्स निकालने के लिए 4 फोर्स मैंने बताया था, ओवरटर्निंग तो बताया था, अर्थ प्रेशर वाला लोड, अर्थ प्रेशर, और उसके बाद वेट बताए थे अलग अलग, वेट ऑफ बैकफिल, वेट ऑफ स्टेम, वेट ऑफ बेस स्लैब, वेट ऑफ हील स्लैब, दिस टाइप के। यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको भी डाउट आएगा ये वाला, कि जब मैं मूवमेंट यहाँ पे निकाल रहा हूँ, यहाँ देखो एक बार, K γ × h/3, गामा की यूनिट है यहाँ पे kN/m³, और यहाँ पे मैं 1h मल्टीप्लाई कर दिया, 1h 3h मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 3 m³ मल्टीप्लाई कर दी, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मेरी यूनिट बचनी चाहिए थी kN, लेकिन यहाँ पे यूनिट है kN/m। यहाँ पे देखो मेरी यूनिट है kN/m। तो ये एक नेक्स्ट वाला मीटर कहाँ से आया है, जब मैं ये
प्रेशर था मेरा K इंटू गामा H। तो इस प्रेशर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एरिया से, प्रेशर को मल्टीप्लाई करता हूँ एरिया से। तो यहाँ पे एक खाली 4.7 दे रखा है, तो यहाँ पे इंटू 1 मीटर और आता है, जिससे मेरी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोन्यूटन मीटर। पर मीटर के हिसाब से वोल्ट डिज़ाइन करेंगे हम। ये वाली तो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन आ गई ना मेरी। अब डिज़ाइन तो हम ऐसे करेंगे प्लान व्यू के हिसाब से, पर मीटर, इस डायरेक्शन में पर मीटर। ये मेरा साइड व्यू दे रखा है, जब मैं इसको टॉप व्यू देखूँगा तो ऐसे दिखेगी कुछ ये वॉल। तो ऐसे पर मीटर के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं हम। अब है फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रिटेनिंग वॉल। फर्स्ट है ओवरटर्निंग फोर्स PH। PH का फॉर्मूला क्या था, K गामा H इंटू H, हाफ K गामा H इंटू H। ओवरटर्निंग फोर्स पूरी टोटल हाइट के ऊपर एक्ट करता है, तो H की वैल्यू मैं कैपिटल H लूँगा। तो यहाँ से मेरा निकल के मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकल आएगा, इंटू CG से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा सब, ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा। ट्रायंगुलर का CG होता है 1/3 पे, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करके मैं मूवमेंट निकाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स वेट ऑफ बैकफिल निकालूंगा। पहले वेट ऑफ बैकफिल निकालने के लिए पहले लोड निकालूंगा ना। लोड का कैसे निकालते थे, डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो 1.6 वेट। अब फर्स्ट मेरा W1 क्या होता है, तो हिल स्लैब के ऊपर जितना भी बैकफिल का लोड है। ठीक है, अब ये देखो जितना भी शेडिड पोर्शन है मेरा ये वाला, इसका मुझे वेट निकालना है। इसका वेट निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, इसके डायमेंशन को मल्टीप्लाई करूँगा। 1.6 है मेरी ये वाली लेंथ, और 4.7 है मेरी हाइट, ये वाली हाइट। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके मैं वेट निकल आएगा। इसका CG कहाँ पे लाई करेगा, ये टोटल है मेरी 2.8। तो मैं इस डायरेक्शन से काउंट करना स्टार्ट करूँगा, यहाँ से यहाँ तक, इसके हाफ तक। ये मेरी 1.6, तो इसके हाफ तक ये वाली डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ये निकाल रखी है। ऐसे ही सेम करना है वेट ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, स्टैम्प का भी ऐसे ही करना है। अब स्टैम्प वाले के लिए मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा पहले। अब वेट ऑफ स्टैम्प के लिए फर्स्ट है रेक्टेंगुलर पोर्शन। रेक्टेंगुलर मेरा यहाँ पे शो कर रखा है मैंने ग्रीन लाइन से, रेक्टेंगुलर पोर्शन ये स्ट्रीम का। ठीक है, इस स्टैम्प का ही, इसका ही खाली वेट निकालना है। इसके लिए क्या करूँगा, 0.15 मेरी ये वाली है, ये वाली थिकनेस, और ये हाइट है मेरी 4.7। तो इसको मल्टीप्लाई करके इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूँगा 25 से। तो अब भाई CG यहाँ से लेके इसके रेक्टेंगुलर के मिड तक की डिस्टेंस है मेरी ये वाली। ठीक है, 0.85, ये मेरी 0.85 प्लस 0.75 0.35 है ये, माइनस 0.15/2। मीन्स इसमें मैं ऐड क्या क्या कर रहा हूँ, ये वाली थिकनेस प्लस ये वाली, और इसका हाफ, इससे आगे का हाफ, इसका हाफ ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ऐसे ही ट्रायंगुलर पोर्शन करेंगे। ट्रायंगुलर का बस डिफरेंस क्या होगा, इसका CG यहाँ पे लाई करेगा, इसका 2/3 पे। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 2/3, बस यही डिफरेंस होगा। ऐसे ही बेस स्लैब का टोटल निकाल लूँगा मैं। इस टोटल बेस स्लैब का वेट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू इसका डेंसिटी, और CG होगा इसका टोटल का हाफ, तो 1.4। ऐसे में टोटल MR निकाल दूंगा। टोटल लोड समेशन ऑफ W निकाल दूंगा। यहाँ से एक और टर्निंग मूवमेंट को अलग से शो कर दूंगा। ठीक है, ये मेरे फोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद मैं करता हूँ 3 चेक, स्टेबिलिटी, स्लाइडिंग और फेलियर ऑफ अंडर सोइल। फर्स्ट मैं करूँगा ओवरटर्निंग का चेक। ओवरटर्निंग चेक के लिए फॉर्मूला था मेरा 0.9 MR/m0। ये शुड बी लेस ग्रेटर देन 1.4 होना चाहिए। तो मेरे MR इसमें शो कर रखा अलग से, MR इस पे अलग से शो कर रखा है। ये MR है, ये मेरा m0 है। खाली फॉर्मूला लगाना है और इसको चेक करना है। ऐसे ही सेम के स्लाइडिंग का FR 0.9 FR/FS। FR है FR/FS। FR है मेरा म्यू इंटू समीशन ऑफ टोटल लोड, और FS है मेरा PH। म्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.45। ऐसे ही सोल्व करेंगे, इसको चेक करेंगे। ये भी मेरा लेस देन 1.4 आना चाहिए, ऊपर वाला ग्रेटर देन, ये वाला लेस देन। अब ये लेस देन है, इसलिए मैं प्रोवाइड करूँगा शियर की।
दोनों मेरे क्या होने चाहिए थे, ग्रेटर देन 1.4 होने चाहिए थे, लेकिन स्लाइडिंग वाले केस में क्या आया, लेस देन 1.4, तो इसलिए मैं शेयर की प्रोवाइड करूँगा। थर्ड है मेरा फेलियर ऑफ सोयल अंडर दी अंडर सोयल, फेलियर ऑफ अंडर सोयल। इसके लिए दो चेक करता था मैं, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन और इसेंट्रिसिटी। एक है मेरा, सबसे पहले इसेंट्रिसिटी का कर रखा है इसमें। इसेंट्रिसिटी कहाँ पे डिफाइन करनी है, इसेंट्रिसिटी के लिए वैल्यू थी E इक्वल टू B/2 माइनस एक्स बार, B/2 माइनस एक्स बार। एक्स बार है मेरी डिस्टेंस, वो निकलेगी मूवमेंट अपॉन फोर्स करके, मूवमेंट अपॉन लोड करके, ये निकाल रखी है, देख लेना आप, ठीक है। ये मूवमेंट निकाल रखी है और लोड निकाल रखा है। इसके बाद इसेंट्रिसिटी ये विद इन होनी चाहिए थी B/6 होनी चाहिए थी। अब B/2 माइनस 6 एक्स बार से निकल गई 0.35, और B/6 जब मैं निकालूंगा 2.8, B की जगह पे 2.8 रख के, तभी वो मेरी निकल के आएगी 0.466, तो ये भी सेफ है। अब निकालता हूँ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम फोर्स, उसका फॉर्मूला है समीशन W/B 1+6C/B, और मिनिमम वाले के लिए खाली यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। सारा सब फॉर्मूला सेम है, सब डायमेंशन सेम है, बस खाली है कि प्लस माइनस का डिफरेंस, ठीक है। अब P मैक्सिमम मेरा लेस देन होना चाहिए था SBC से, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल से, और मेरा P मिनिमम होना चाहिए था पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो ये भी सेफ है। तो इसके बाद कंप्लीट द डिज़ाइन ऑफ स्टेम पार्ट। ओके, हमने इसमें थिकनेस निकाल दी थी टॉप पोर्शन पे 150 mm और इस पोर्शन पे 350 mm, ठीक है। अब ये निकाल रखी है। तो इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम मूवमेंट निकाल देनी है। मैक्सिमम मूवमेंट जो हमने थिकनेस निकालते टाइम निकालती है 155.73, वही सेम रखनी है। उसके बाद इस मूवमेंट को लेके मैंने एरिया ऑफ स्ट्रेन निकालना है, एक बार एज्यूम करना, उसके बाद उसकी स्पेसिंग निकालनी है। कैसे, जैसे इसमें क्या हुआ देखो, यहाँ क्या हुआ है, इस मूवमेंट के ऊपर, इस मूवमेंट के बेस पे हमने एरिया ऑफ स्टील निकाल दिया। एरिया ऑफ स्टील आया मेरा 1693, ठीक है। अब इसे एक बार मैंने जूम कर लिया 16 mm डायमीटर का, तो 201 एक बार का डाया, तो उसकी स्पेसिंग निकाल दी है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसकी स्पेसिंग निकाल दी, ये आया मेरा 16 mm डायमीटर बार एट द रेट ऑफ 100 mm स्पेसिंग, ठीक है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकालना है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील क्या है, 0.12%, 0.2112% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसमें क्या है, बी क्या होगा मेरा, पर मीटर निकालते हैं हम, और डी एवरेज थिकनेस लेते हैं 150 + 350/2, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके लिए 8 mm डायमीटर बार यूज़ कर लिया है, A5, और स्पेसिंग इसकी निकाल दी है, ठीक है। ये तो होगा मेरा मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार। इसके बाद इसके लिए मैं चेक करता हूँ, चेक फॉर शियर। शियर चेक करने के लिए इसका क्रिटिकल सेक्शन लेता हूँ, डी डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। अब इसमें यहाँ बेस से डी डिस्टेंस में क्रिटिकल सेक्शन लेता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर वाली हाइट में निकाल लूँगा। ऊपर वाली हाइट कितनी होगी, 4.7 माइनस डी, ठीक है। ये टोटल थी मेरी 4.7, तो इसे माइनस डी कर दूंगा, ये आ जाएगी मेरी अप्रोक्स 4.41 मीटर, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मैं इस हाइट पे शियर फोर्स निकालूंगा। शियर फोर्स का क्या फॉर्मूला होता था, हाफ के गामा एच इंटू एच, ठीक है। ये होता है मेरा शियर फोर्स, और जब मैं इसको इंटू एच, ठीक है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ h/3 से, h/3 से, तो ये बन जाती है मेरी मूवमेंट, ठीक है। ये मैंने शेयर फोर्स यहीं तक कंप्लीट लेना अब तक। इसके बाद मैंने शेयर फोर्स निकाल दिया 87.52। इसके बाद मुझे नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालना है कि ये क्या है, टाउ वी निकालने क्या करता हूँ, V/BD। BD क्या है, B पर मीटर वही, और D मैं लूँगा 290, ठीक है। अब टाउ वी तो मेरा निकल गया, अब निकाला मुझे टाउ सी कहाँ से निकला, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला क्या होता है, 100 AST/BD। तो यहाँ से मैंने परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल दी। अब यहाँ से टाउ वी आया था मेरा 0.30 और टाउ सी आया 0.54, तो टाउ सी ग्रेटर देन टाउ वी, तो सेफ स्ट्रक्चर। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे कर्टेलमेंट ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। कर्टेलमेंट क्या होती है, जो भी मैं स्टेम पोर्शन पे क्या है, अब स्टेम पोर्शन पे यहाँ देखो डायग्राम में, स्टेम पोर्शन पे क्या होता है, इसका मूवमेंट डायग्राम बनता है, तो टॉप पॉइंट पे मिनिमम होता है 0, अप्रोक्स 0 ही होता है ना, तो और बेस पे होता है मैक्सिमम,
तो जब मैं टॉप पॉइंट की तरफ से बार डालने शुरू करूँगा तो उसमें क्या होगा, मुझे इतना स्टील नहीं चाहिए ऊपर की साइड, क्योंकि वहाँ मूवमेंट मेरी अप्रोक्स 0 है, नीचे ज़्यादा स्टील चाहिए मुझे। ठीक है, जैसे ये है मेरा स्टेम पोर्शन के लिए अब मुझे यहाँ पे निकालने हैं, ये बार लगा रखे मैंने ऐसे। ठीक है, ये जो लाइन लगा रखे हैं बार है। अब इस बार के लिए अगर मेरे ऊपर मूवमेंट 0 है तो मुझे ये ऊपर वाले बार यहाँ तक लगाने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मेरा एक्स्ट्रा स्टील हो जाएगा, इसको मैं कट भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसी कट करने को बोलते हैं कर्टेलमेंट। और मैं कितना कट करूँगा ये आगे देखेंगे। अब मिनिमम कंक्रीट है, मिनिमम लेंथ ऑफ बार है, वो क्या लेता हूँ मैं, LD, डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, जितना भी स्टील लेंथ ऑफ बार एम्बेडेड इन कंक्रीट, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। तो मिनिमम मेरी इसका फॉर्मूला होता है LD 0.8755 अपॉन 4 BD। ठीक है, ये मेरी आई 752, मैं इसको अप्रोक्स मान के चलता हूँ 1000 mm। ठीक है, अब 1000 mm मैंने मान ली तो लेंथ आ गई ये 4.7 मेरी टोटल थी, 1000 माइनस कर दिया। अब इसे 3.7 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेम। ठीक है, अब इसी हाइट पे मैंने थिकनेस निकालनी, मीन्स मैंने ये मान के चलो, अब मुझे इस हाइट पे, यहाँ पे इस हाइट तक बार कट कर दिए, ये ऊपर वाले अल्टरनेट बार। ठीक है, अल्टरनेट बार 1000 mm पे कट कर दिए। अब इसी हाइट के ऊपर मैं थिकनेस निकालूंगा यहाँ पे, ये वाली थिकनेस। ठीक है, ये वाली थिकनेस कैसे निकलेगी, अब इसी पोर्शन को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट क्या होगा मेरा, एक तो ट्रायंगुलर, एक होगा रेक्टेंगुलर। ठीक है, इस स्टेम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, एक होगा ट्रायंगुलर, एक होगा ये होगा रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर। ठीक है, ट्रायंगुलर से इसकी विड्थ निकाल दूंगा मैं, थिकनेस निकल आएगी मेरी। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसी हाइट के ऊपर मैं निकालूंगा मूवमेंट से निकालूंगा एरिया ऑफ स्टील। अब मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, हाफ के गामा H इंटू H/3। हाफ के गामा H इंटू H, ये यहाँ तक था मेरा शेयर फोर्स। इसके बाद मूवमेंट से CG से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया मेरा मूवमेंट। ठीक है, अब मैंने ऐसे ही मूवमेंट निकाल रखी है इसमें। मूवमेंट निकला है मेरी 76 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब मेरा यहाँ से एरिया ऑफ स्टील निकल आएगा और फिर मैं स्पेसिंग निकाल दूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या आ गया मेरे क्वेश्चन से कि मैं अल्टरनेट बार यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में मैं ये वाले जो बार है मेरे, ये वाले, इन बार को मैं अल्टरनेट 1 मीटर हाइट पे कट कर दे रहा हूँ, एक छोड़ के एक बार। मीन्स मेरा ये वाले बार है नहीं यहाँ पे, इनको यहाँ ऊपर की साइड से कट कर दूंगा मैं, कुछ ऐसे बार यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, अल्टरनेट बार हाइट कट करके। अब इसके बाद लेकिन एक कोड बोलता है, कोड की स्पेसिफिकेशन है कि मेरे जो ये कट एलिमेंट की हाइट होती है वो IS 456 के हिसाब से 12, 5 और D डिस्टेंस, इनमें जो भी ग्रेटर होगा उतनी हाइट होती है। ठीक है, अब मैंने यूज़ कर रखा था 1000 mm। ठीक है, अब इसमें मैं ऐड कर दूँगा 12, 5 और D डिस्टेंस। 12, 5 मेरा 5 था 16 mm, तो ये अप्रोक्स आएगा मेरा 192, और D डिस्टेंस है मेरा 300, तो मैक्सिमम क्या है 300, तो 300 ऐड कर दूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 1.3 मीटर। ठीक है, अब मेरी हाइट होगी कर्टलमेंट की 1.3 मीटर। ठीक है, इसके बाद कोड के हिसाब से IS 456 ये भी बोलता है कि हाइट के हिसाब से एक और कर्टेलमेंट होगी मेरी। वो कर्टेलमेंट कहाँ पे होगी, इसके हिसाब से कितनी होगी, 1.5 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेम। इसमें आप 1.7 मीटर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा अब डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बने। इसमें जैसे हम देखते हैं, हमने बार यूज़ कर रखे हैं डायग्राम में। सबसे लॉन्गर बार कौन से हैं, जो हमने अभी मेन एरिया ऑफ स्टील में निकाले थे, ये वाले बार 150 mm स्पेसिंग पे, नहीं ये तो हाँ, ये वाले 16 mm बार एट द रेट 100 mm स्पेसिंग। ठीक है, अब ये वाले जो मैंने इसमें दिखा रखे हैं वॉलेट लाइन से, ये 100 mm स्पेसिंग पे बार यूज़ कर रखे हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सबसे छोटे वाले बार, जो उनसे 1.3 मीटर हाइट पे
3 मीटर हाइट पे प्रोवाइड कर रखे, कट कर रखे हैं, ये सबसे छोटे वाले बार। ठीक है, इसके बाद जो से ग्रीन कलर के बार हैं वो कौन से हैं, जो से अब हमने यूज़ किए हैं 1.5 मीटर फ्रॉम द टॉप, ये वाले ग्रीन कलर वाले। ठीक है, ऐसे अब इनकी स्पेसिंग निकालने के लिए क्या करूँगा, इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैं वही सेम करूँगा जैसे मैंने यहाँ के लिए किया था। थिकनेस निकाल ली थी, यहाँ निकाली थी ना 1.53 मीटर के लिए, वो 1 मीटर के लिए। ऐसे ही मैं थिकनेस निकालूंगा, ऐसे डायग्राम में बताता हूँ अभी। ऐसे इसमें 1.5 मीटर के ऊपर मैं ये वाली थिकनेस निकालूंगा। ठीक है, अब इस थिकनेस को निकाल के फिर मैं मोमेंट निकालूंगा, वही उसी फॉर्मूले से यूज करके, उसी मोमेंट से उसके बाद मैं एरिया ऑफ स्टील निकालूंगा। ठीक है, मोमेंट से एरिया ऑफ स्टील निकाल दिया। अब 1.5 मीटर के ऊपर मेरा आता है 16 mm डायमीटर बार, स्पेसिंग आती है 400 mm। तो लेट्स स्टार्ट विद डिजाइन ऑफ हिल स्लैब। इन द हिल स्लैब we can see in the diagram there is movement earth pressure diagram of the base slab. सो पी मैक्सिमम एंड पी मिनिमम हमने काउंट कर लिया था। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, मूवमेंट निकालने के लिए हम क्या निकालते थे, लोड। ठीक है, लोड से मूवमेंट निकालते थे। अब लोड तो इसमें क्या है, अब स्टार्ट कर रहे हैं हिल स्लैब से। हिल स्लैब के ऊपर लोड कौन सा लगेगा, एक तो ये ऊपर का फोर्स जो बैकफिल का है, और एक इसका सेल्फ वेट। ठीक है, सेल्फ वेट और फोर्स, और तीसरा क्या होगा, जो भी ये अपवर्ड अर्थ प्रेशर है, ये वाला। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वेट ऑफ अर्थ सपोर्टेड ऑन हिल स्लैब क्या होगा, डेंसिटी इनटू एरिया। डेंसिटी क्या है 18 सोइल की, और एरिया कितना होगा 4.7 मीटर हाइट है स्टैम्प की, और पर मीटर हमने काउंट करना है, तो काउंट करके आएगा 84.6। एंड सेल्फ वेट हम निकालेंगे डेंसिटी इनटू एरिया, फिर ये आ गया। डेंसिटी क्या है आरसीसी की 25। अब एरिया क्या होगा 0.5 इंटू 1, 0.5 क्या है डेप्थ ऑफ हिल स्लैब, ये वाली डेप्थ, ये वाली डेप्थ। ये जो डेप्थ है हिल स्लैब की, ये कितनी है 0.5 मीटर। तो टोटल लोड हमने निकाल दिया, ये दोनों को ऐड करके डेड लोड जोन सा हमारा 97.1 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अर्थ प्रेशर। जो एक्टिव अर्थ प्रेशर नीचे से लग रहा है, पी मिनिमम पी मैक्सिमम निकाला था, उससे हमें खाली कितने पोर्शन का निकालना है, यहाँ से यहाँ तक इतना है एरिया हमें काउंट करा। हमें यहाँ का पता है कितना है 17.83 है ना, ये वाला 17.83। अब मुझे निकालना है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे ट्रायंगल लॉ से। अब जो मेरा ये है प्रेशर है, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ दो हिस्सों में। फर्स्ट पार्ट क्या होगा मेरा, रेक्टेंगुलर पोर्शन जो सा येलो कलर से शो है, और ट्रायंगुलर पोर्शन जो सा ऑरेंज कलर से शो है। अब इसको निकालने में काउंट करूँगा, मुझे यहाँ पे निकालना है, ये वाली हाइट चाहिए मुझे पूरी। ठीक है, मुझे ये वाली हाइट पूरी चाहिए। तो इसे निकालने के क्या करूँगा मैं, इसे हम कैसे निकालेंगे, इसे निकालेंगे यहाँ से। अब ये है मेरा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन वाला डायग्राम। अब मुझे निकालनी कौन सी हाइट है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली मुझे टोटल हाइट चाहिए। ठीक है, अब ये तो मुझे पता है ऊपर वाली कितनी होगी 17.83, यहाँ से यहाँ तक मुझे खाली नीचे तक का काउंट करना, एफ जी की वैल्यू निकालनी है। अब ट्रायंगल से मैं लूँगा, ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, रेशो लो, ए एफ अपॉन ए सी, ए एफ अपॉन ए सी, यहाँ से यहाँ तक, और फिर टोटल, फिर इसका किसका रेशो बराबर होगा, एफ जी अपॉन बी सी। ठीक है, ये दोनों रेशो बराबर होंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। एफ जी की वैल्यू ए एफ अपॉन ए सी। ठीक है, ए एफ की वैल्यू कितनी है 1.6, और एफ ए सी की वैल्यू कितनी है टोटल 2.8 टोटल विड्थ। अब इसको इक्वेट करेंगे किसके, एफ जी अपॉन बी सी के। एफ जी मुझे निकालना ही है, और बी सी कितना होगा, टोटल थी मेरी 124.83,
ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर वाले पोर्शन की विड्थ कितनी है 17.83। अब इस टोटल में से मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बी सी की आ जाएगी, तो मैं वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ से एफ जी की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, अब ये वाला एफ जी कौन सा एरिया मेरा, कौन सी ये वाली चीज़ है एफ जी। ठीक है, अब मैं ऐसे ही इस पॉइंट पे भी निकाल दूंगा, ये मेरा काम आएगा टो स्लैब के काम में। ठीक है, तुम खुद से कैलकुलेट करोगे ये, बस एक डिफरेंस क्या होगा, बस ये जो सी लेंथ इसमें 1.6 थी, अब लेंथ मेरी हो जाएगी ये वाली, स्टेम वाली ऐड कर देंगे। स्टेम कितनी थी 0.35, तो 1.6 में 0.35 ऐड करेंगे, ये होगी 1.95। ठीक है, इससे आगे अब हम कैलकुलेट करेंगे मूवमेंट। मूवमेंट काउंट करने के लिए फर्स्ट डेड लोड। अब आगे सेम कंडीशन वही होगी, एक रेक्टेंगुलर और एक ट्रायंगुलर बन जाएगा। रेक्टेंगुलर के लिए ठीक है, रेक्टेंगुलर वाला ऊपर वाला जो सा येलो कलर का है उसके लिए हम बोलेंगे यूडीएल है मेरा W12²/2, और नीचे वाला पोर्शन कौन सा बनेगा, ये ट्रायंगुलर जो सा ऑरेंज कलर में बना हुआ है, ये वाला एरिया ये। ठीक है, ये क्या है यूवीएल। यूवीएल के लिए क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू हाइट ये वाली बेस, और सी जी लेंगे h/3। ठीक है, अब मूवमेंट काउंट कर दिया, मूवमेंट से अब डेप्थ के लिए चेक कर देंगे ये वाला। ठीक है, अब फिर वही चीज़ है, मूवमेंट से एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे, बार ज्यूम करेंगे, उसकी स्पेसिंग निकाल देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए मैं मिनिमम एरिया लेता हूँ, उसके लिए स्पेसिंग निकाल देंगे, और 10 mm डायमीटर का बार यूज कर लिया। अब आती है मेरी टो स्लैब की बात। अब टो स्लैब में भी सेम चीज़ है। टो स्लैब के लिए हम क्या करते थे, जो सा इसके ऊपर बैकफिल का वेट है और जो इसका सेल्फ वेट है नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि मिनिमम हाइट होती है इसकी, बहुत छोटी विड्थ होती है, तो इसको हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो इसमें खाली मूवमेंट किससे निकालेंगे, जो मेरा ये अर्थ प्रेशर है। ठीक है, मूवमेंट खाली इससे निकालेंगे। अब इसके लिए मैं बता रहा था टो स्लैब के लिए इतने एरिया के लिए कहाँ पे काउंट करेंगे, इस फेस के ऊपर, इस फेस के ऊपर काउंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस फेस के लिए तो फिर हमें ये हाइट चाहिए, ये हाइट निकालने के लिए वैसे ही ट्रायंगल ला से हम निकाल लेंगे। अब इसमें दो पोर्शन हो जाएंगे, फर्स्ट है मेरा ट्रायंगुलर वाला, रेक्टेंगुलर वाला, फिर आ जाएगा ये यूवीएल, ये यूडीएल, ये यूवीएल। मूवमेंट निकाल दी, एरिया ऑफ स्टील निकाल दिया, स्पेसिंग निकाल दी। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन स्लाइडिंग के केस में फेल हो रहा था, तो मुझे क्या करना है, डिज़ाइन ऑफ शेयर की। शेयर की डिज़ाइन करना, शेयर की क्या होती है मुझे पता था, स्टेम वाले पोर्शन के नीचे मैं एक्स्ट्रा विड्थ का एक पार्ट ऐड करता हूँ, उसको बोलते हैं शेयर की। शेयर की करने के स्लाइडिंग के केस में क्या था, यहाँ देखो ये वाली चीज़ मेरी क्या थी, ग्रेटर देन 1.4 होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी आई लेस देन। तो मुझे इस चीज़ में कुछ ऐड करना पड़ेगा, 0.9 FR/FS में कुछ मैं ऐड करूँगा, तभी तो इससे ज़्यादा आएगी ना। तो मैं ऐड क्या करूँगा, पैसिव अर्थ प्रेशर। पैसिव अर्थ प्रेशर कैसे, ये वाली चीज़ देखो, 0.9 म्यू अपॉन समीशन W/PH, ये है समीशन FR, ये नीचे वाला FS। इसमें मैंने ऐड किया है 277.05 A। ये क्या है मेरा पैसिव अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर फॉर्मूला क्या होता था, KA, फॉर्मूला क्या था, KA गामा इंटू H। अब पैसिव की बात आई तो KA की जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगा, KP यूज करूँगा। KA की जगह मैं यूज करने वाला हूँ KP, और गामा की जगह जो मेरा इस पॉइंट पे अब मैंने प्रेशर निकाला था ट्रायंगल लॉ की वजह से, कितना आया था 92.35। ये चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाली चीज़ 92.35। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया इंटू H की जगह पे मैंने ले ली ये वाली हाइट, H को पुट किया A, तो 0.9 U समीशन W प्लस 277 पॉइंट जो यहाँ से आया है 0.05 A/PH, इन सब की वैल्यू है मेरे पास। तो यहाँ से मुझे A निकालना, इक्वेट कर दूंगा 1.4 के। A की वैल्यू हाइट निकल आएगी 0.118 मीटर, इसको अप्रोक्स ले लिया 200 इंटू 200 mm। तो यहाँ तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब डिटेलिंग ऑफ बार्स हम देख लेंगे। एक कर्टेलमेंट ऑफ स्टेम वाला पोर्शन है जो हमने निकाला था, जो नीचे वाले थे 1.3 मीटर हाइट पे और ऊपर से 1.5 मीटर हाइट पे। ये चीज़ ये वाले वो मेरे बार हैं, स्पेसिंग इनमें शो रखी है। ऐसे ही बार इसमें दोनों साइड शो कर रखे हैं।
जो सा हमने हिल स्लैब में निकाला था वही पुट करना है टो स्लैब के लिए, टो स्लैब वाला। अब बात आती है शेयर की। शेयर की में क्या होगा, जो स्टेम वाले बार्स होंगे वही रेगुलर ही यूज़ होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील वाले, ठीक है, सेम ही। तो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो जाता क्वेश्चन, डिज़ाइन ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। थैंक यू।